here it is. So, guys, welcome to Homeflick We Grow. And this session would be interactive, not like a lecture. I can give you lecture all these things, so you can ask a lot of question, anything, any doubt. But before that, I would like to talk about myself and about the Spanish language. तो ऐसा है कि I will speak in English or Hindi also. Maybe some people are not comfortable in English in that way, so I will use both the language. Is that okay? Yes, sir. Yeah, okay. Okay. So my name is Jilani, and I studied Spanish earlier in Delhi University. And then I have studied Spanish in Spain in one of the prestigious university that is called University of Granada in Spain, and I stayed there. And before pandemic, I used to go twice or thrice every year, but unfortunately, no. I'm in India. I live in Delhi, so that is the thing. And I did my Spanish specialty in teaching Spanish language to Indian students or adults, especially in India. So my expertise in that didactics, and this is the small. And I have been teaching in home flicks for so many months, and I taught already 6 7 batches. Yeah, six batches already in home flick we grow. And I work in one of the prestigious university in India. I work in OP Jindal Global University. It is in Sonipat. So this is my part time. So I take classes in the evening 7:30. By that time I am free. So I just want to teach. So I want more and more students to learn Spanish in India. Why? Because I have seen when I was a student, no, मुझे पता था when I was a student, I started learning Spanish in 2002. 2002 में मैंने start किया था. So when I have started, many of my friends ask me, अरे Spanish क्यों सीख रहे हो? Why don't you learn French, German? क्यों सीख रहे हो? तो I said कि I think कि मैं तो इसलिए सीख रहा हूँ because the Spanish is widely spoken, और French और German तो बहुत सारे लोग जानते हैं. And French is not very widely spoken. It is generally spoken in the African countries. But Spanish is the second language. पता है कहाँ का second language है? तो apart from Spain तो पता है कि Spain का language है. ठीक है, but apart from Spain, Spanish is the official language of 21 countries. And it is also one of the official language of United Nations Organization. और पता है आपको बहुत ही सुन के आश्चर्य होगा. When I was started learning, that time I was not aware कि Spanish is the second language in United States of America. So Spain की जितनी population है उससे ज्यादा population तो US में Spanish बोलती है. If you go to Florida, Chicago, Texas, and so many places in Spain, US, they speak Spanish. So एक तो ये था. So Spanish and whole Latin American country, जैसे मैं बड़ा बड़ा countries बता देता हूँ, जैसे मैक्सिको है, चिले है, अर्जेंटीना है, और भी बहुत सारी यूरुग्वाई, पैराग्वाई, छोटी छोटी कंट्रीज है. बट जो अर्जेंटीना, चिली, जिसको चिली बोलते हैं इंग्लिश में, स्पेनिश में तो चिले है, एंड मैक्सिको है, मैक्सिको बोलते हैं स्पेनिश में. सो ये है एक तो, और यूएस में है. और मेनी ऑफ द इंडियन कंपनीज जो है आज के टाइम पे, दे आर ओपनिंग देयर ब्रांचेस इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. जैसे कि टीसीएस, नो, दे आर ओपनिंग इन मोस्ट ऑफ द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. दे आर प्लानिंग expanding, and they need lot of Spanish expert so that they can work with them. So nowadays I tell you one thing very clear. If you know a language, for a language, especially Spanish, then you have a more job opportunities. So जैसे कि you can see, you can work in embassies also. जैसे बहुत सारी embassies है यहाँ पे, like 21 countries. So वहाँ पे क्या करते हैं, they recruit Indian people who know Spanish. जैसे I know some of my friends, they are working in Mexican embassies, Peru embassies. Spanish तो है ही है वो, तो वो वहाँ पे you can work there. उसके अलावा जो you can work in a tourism sector. Yes? Am I audible? Clear? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Okay, so first let me tell you something, then you can ask me your question. So बताता हूँ, the benefit of learning a language. Benefits पता होना चाहिए.
तो देखो पहला जो बेनिफिट आई कैन टेल यू फ्रेंकली, स्पेनिश लर्निंग is not learning a language. जब तुम स्पेनिश पढ़ोगे तो you will learn about the culture also. Culture भी सीखोगे. You can improve your English skills also. So I tell you frankly, I belong to a very rural area, and I did my schooling in the government school. When I came to Delhi to do the undergraduate course, then I realized the importance of English, everything. So, but when I started learning Spanish, you cannot imagine. I have improved the English a lot also, like my writing skills, communication skills. तो एक तो ये बेनिफिट मुझे लगा. दूसरा बेनिफिट क्या है? You can teach side by side also. After learning few years, like a 1 year, you can teach like a tuitions पढ़ा सकते हो. Or if you learn 2 years Spanish language, then you can work in a school. There are so many international schools. No, they have Spanish as a subject. Like I can tell you the modern school, step by step school, mini Sri Ram school. जितने भी तुम famous school ले लो, संस्कृति school, जितने भी है इंडिया में, most of them they have Spanish nowadays. पहले क्या था कि फ्रेंच और जर्मन, I don't know क्यों इतना ज्यादा फ्रेंच और जर्मन फ्रेंच और जर्मन का बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटीज थी इंडिया में. बट for the job prospect, career wise and others, Spanish is very important nowadays. I am talking about the today world, not about the earlier time. ठीक है, पहले का वक्त कुछ था, but आज के टाइम में if you know Spanish, then you have lot of opportunity. क्यों? क्योंकि एक तो ये यूएस का सेकंड लैंग्वेज है, एंड यूएस की इकोनॉमी जो है सब पे क्या है, वो इज वेरी डोमिनेटिंग है ना. अगर यूएस का इकोनॉमी अगर गिरता है तो सारी दुनिया में जो है वो गिर जाते हैं. एंड तो मैं जैसे आई वर्क एज अ ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर ऑल्सो साइड बाय साइड. तो जैसे तुम लोग भी सीखने के बाद यू कैन वर्क एज अ ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर. ऑल दो लोग बोलते हैं कि सर आजकल तो गूगल से ट्रांसलेट कर लेते हैं. अरे भैया गूगल से तो ट्रांसलेट कर लोगे, बट कभी भी जो ह्यूमन ट्रांसलेशन को तो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता ना. अब जैसे मान लो ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस में कितना डिफरेंस होता है कि नहीं होता है. अब बोले कि नहीं ऑनलाइन क्लासेस ही चले, क्या है कॉलेज खुलना है, सब कुछ ऑनलाइन ही कर दो, सबको लैपटॉप दे दो, मोबाइल दे दो, ऑनलाइन. बट यू कैन अंडरस्टैंड, तो वो चीज है. तो वो है, यू कैन वर्क इन बीपीओ, केपीओ, टूरिज्म, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉर्म में काम कर सकते हो, टूरिस्ट गाइड का काम कर सकते हो. व्हेन आई वाज स्टूडेंट्स, व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, आई यूज्ड टू वर्क एज अ टूरिस्ट गाइड. ना मैं दिल्ली, जयपुर, आगरा, जो स्पेन, मैक्सिकन लोग आते थे तो घुमाता था, बहुत मजे आते थे, मनी भी अच्छा अर्न करता था, और आई हैव इम्प्रूव माय स्पेनिश आल्सो देयर. और मैं जो है एवरी ईयर आई यूज्ड टू ऑर्गेनाइज टूर आल्सो. नहीं, जैसे मैं इस 2 साल से तो नहीं कर पा रहा हूँ. ड्यूरिंग समर में मैं जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को मैं जो है 2-3 हफ्ते का टूर स्पेन में ऑर्गेनाइज करता हूँ. आई टेक देम देयर, दे डू कोर्सेज, फिर उनको मैं मोनूमेंट्स, बीचेस और ये सब घुमाता हूँ. ये तो हो गई, तो मतलब कि है, देखो पता नहीं. और दूसरा जो बेनिफिट मुझे लगता है कि स्पेन का जो कल्चर इज वेरी रिच कल्चर. स्पेन हैज अ वेरी रिच कल्चर. अच्छा, तुम लोगों ने तो जिंदगी ना मिलेगी त्योबारा देखा होगा ना. जिंदगी ना मिलेगी चौबारा या त्योबारा, क्या बोलते हैं, दोबारा. यस सर, दोबारा है ना. मैं उसको चौबारा बोलता हूँ ना, क्योंकि मैं उसको 3-4 बार जब भी मौका मिलता है आई सी दैट मूवी. मैं बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है देख करके, क्योंकि आई हैव स्टेड इन स्पेन सो मेनी इयर्स, और मुझे पता है हाँ, मतलब आई एम मिसिंग ए लॉट, क्योंकि स्पेन का जो कल्चर इज वेरी डिफरेंट. अच्छा, एक चीज और आई कैन टेल यू फ्रैंकली, ऐसा नहीं कि मैं स्पेनिश पढ़ाता हूँ, स्पेनिश जानता था, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, बट आई हैव विजिटेड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज. तो पहले तुम लोग जो है, और मैंने देखा कि nowhere you can find a Spanish culture, lively culture there. So if you want to visit Europe, first go to Spain जाओ, and then you visit other parts of European countries. Then you will find the difference. तो मैंने realize किया, I've been to Amsterdam, Prague, so many European countries, Paris, all these things. But मुझे स्पेन का जो culture है वो बहुत ही lively है, वही different है, नाइट लाइफ है, और बीचेस हैं, फूड तो तुमने सुना ही होगा, है ना. चॉकलेट्स विथ चुर्रोस, चॉकलातेस con churros they say, है ना. और स्पेनिश लैंग्वेज बहुत ही इजीएस्ट लैंग्वेज है टू लर्न. इट्स वेरी इजी टू लर्न, क्योंकि इट्स वेरी फोनेटिक. अब जैसे मैं फ्रेंच जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो फ्रेंच में क्या है, बोंजू मदाम, जो लास्ट वर्ड होता है वी डोंट नो प्रोनाउंस दैट वे.
और इट्स वेरी लाइक हेमेस रेसमिया नहीं गाता जैसे तेरा नैना नैना से नोजल टाइम का लगता है मुझे, हेमेस रेसमिया नहीं गाता, नाक से गाता है गाना वो बहुत सारे, तो लगता नहीं है कि जैसे गुंजू बनाया मच्छी है. So I don't want to, I'm not joking and taking advantage of that language, but I'm just saying I realized that one. तो वो लगा जर्मन तो बहुत ही डिफिकल्ट है, जर्मन इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, फ्रेंच भी है बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आई लर्न पोर्चुगीज ऑल्सो. तो स्पेनिश के साथ क्या है कि इफ यू नो स्पेनिश देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड पोर्चुगीज, बिकॉज स्पेनिश एंड पोर्चुगीज 80% आर सिमिलर. जब मैंने स्पेनिश के बाद आई लर्न पोर्चुगीज फॉर 2 years एंड देन रियलाइज वेरी मतलब सिमिलर है, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है कंपेयर टू स्पेनिश. मुझे लगा यार ये तो इतना डिफिकल्ट है, इतने सारे रूल्स है, स्पेनिश में तो बहुत ही सिंपल रूल है, स्पेनिश में तो इट इज इजियर टू इंग्लिश आल्सो आई कैन से, वेरी इजी. बस एक ही प्रॉब्लम आती है थोड़ा वो वर्ड का है, जेंडर होता है, जैसे इंग्लिश में हम बोलते नहीं हिंदी में बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं हवा बहती है हर बहता है, कितना कंफ्यूजन होता है ना, बट हम लोग चला लेते हैं. स्पेन में वैसे क्या है, ईच वर्ड इज आइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन, सो एवरी नाउन इज आइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन, तो वो सब थोड़ा सा उसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, बाकी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये जो तुम्हारा कोर्स होगा 20 आवर्स का स्पेनिश लेवल 1, उसमें जो है मैं जो आई टीच स्टूडेंट्स वो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं क्या पढ़ाता हूँ. एक्चुअली आई टीच द थिंग्स दैट यू कैन यूज इन योर लाइफ इन फ्यूचर. जैसे मैं जैसे क्या ऐसी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा कि जैसे तुम्हें लगेगा अरे यार क्या, मतलब बहुत सारे वर्ब्स हैं, मैं उस सबको नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू यूज देम. सो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं पढ़ाता हूँ. जैसे मान लो यू कैन लर्न अबाउट हाउ टू डू शॉपिंग, you will learn about the numbers, you will learn about the how to introduce yourself, you will learn about asking the price, you learn about the, how to ordering a food in a restaurant. जैसे तुम्हें स्पेन गए, फूड ऑर्डर करना है, ड्रिंक्स ऑर्डर करना है, पैसा पूछना है, फिर एयरपोर्ट पे, तो जो तुम्हारा बेसिक है वो बताऊंगा. फिर उसके अलावा जो कल्चर आई विल टीच यू, जैसे स्पेन का कल्चर है, तोमातीना तो सबको पता ही होगा है ना, वो तो जिंदगी में मिलेगी आई चौबारा सबको तोमातीना तोमातीना. तो तोमातीना क्या है, वो एक रीजन में मनाते हैं. जैसे लोहड़ी है पूरे, जैसे नॉर्थ इंडिया में लोहड़ी, वी डोंट सेलिब्रेट लोहड़ी नॉर्थ इंडिया. जैसे मान लो बिहार यूपी में कहाँ लोहड़ी मनाते हैं उस तरीके से, मकर संक्रांति बोलते हैं उसकी जगह पे, है ना, आने वाला फेस्टिवल है. तो इस तरह से तोमातीना है वो एक पार्ट ऑफ स्पेन में मनाते हैं, दैट इज कॉल्ड वालेंसिया, लुइस बुनियल जगह है वहां पे. और वो जो टोमेटो होता है ना, वो ओरिजिनल टोमेटो नहीं होता जो हम लोग यहाँ खाते हैं सब्जी में, और जो हम जाते हैं मैगडी में और बोलते हैं भाई टोमेटो सॉस दो, वो बोले टोमेटो नहीं होता है, उसके लिए प्रॉपर फार्मिंग होती है, और वो मतलब उस तरह का फार्मिंग होता है. यू कैन नॉट ईट दोस टोमेटोज. तो स्पेशली फार्मिंग करते हैं फॉर दैट पर्पस ओनली, और वो उसको मिस करके वो करते हैं. तो वो हो गया. बाकी जो है स्पेन में बुल रन है, तुमने वो देखा होगा, लोग बुल के आगे दौड़ते हैं, ठीक है, वो सब भी मैं आई विल टीच यू ऑल दिस थिंग. जो पॉपुलर कल्चर आई कैन टीच, थोड़ा बहुत मैं बेसिक बता दूंगा. और क्या, हाँ मतलब जो यूजफुल चीजें होगी आई विल टीच दो थिंग. ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा मतलब ये मतलब क्या होता है, मैंने आई हैव सीन अदर कोर्सेज आल्सो कि वो बस 2-3 चीज टॉपिक पढ़ाते उसी में टाइम खत्म कर देते. क्यों पढ़ाने, तो वर्ब्स तो बहुत सारे हैं, देयर आर थाउजेंड ऑफ वर्ब्स, है ना. मैं क्यों सारे वर्ब्स पढ़ा जो तुम यूज ही नहीं करोगे. ऐसे वोकेबलरी आई विल नॉट टीच यू, दो तुम उसको पता नहीं कभी जिंदगी में यूज करोगे या नहीं करोगे, आई डोंट नो. तो जैसे प्रोफेशंस पढ़ाऊंगा, नेशनलिटीज पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव्स आई विल टीच यू. जैसे मान लो तुम्हें बोलना होगा शकीरा खूबसूरत है, शकीरा इज ब्यूटीफुल, तो कैसे बोलेंगे, एनरिके इज ब्यूटीफुल, नहीं ब्यूटीफुल हैंडसम बोलेंगे तो लड़का है, ठीक है. तो उस तरीके की चीजें में आ जाएगा. तो ये सब चीजें मैं बताऊंगा. हो गया, फिर उसके बाद वर्ब्स हो गया, जैसे तुम्हें हाउ टू यूज आई स्पीक स्पेनिश, आई ईट, आई ड्रिंक, आई गो, आई टॉक, आई राइट, आई वॉच, है ना, एंड आई डांस. और स्पेन में जो है डांस पार्टी इज वेरी पॉपुलर. और तुम्हें सुना ही होगा स्पेनिश डांस, क्या क्या डांस पता है तुम्हें. फ्लामेंको पता है स्पेन का है, लेकिन वो बड़ा पेनफुल डांस है, पता नहीं. फ्लामेंको जो है ना, वो लोग जाते हैं ना, फ्लामेंको इज लाइक अवर भरतनाट्यम, यूं 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 करते हैं, और पीपल से ओ मतलब अपना दर्द को दिखाते हैं, टू शो योर पेन, है ना. सबसे जो बेस्ट पॉपुलर डांस है वो है सालसा, जो क्यूबन डांस बोलते हैं. सालसा नहीं हो, तुमने देखा होगा नार्कोस, है ना, मनी हाइस्ट देखा है ना, ला कासा दे पापेल, और चापो, और भी है. अभी मैं जैसे देख रहा हूँ मिसिंग बॉय है, फिर उसके बहुत सारी है स्पेनिश, यू कैन वॉच ऑन नेटफ्लिक्स, वेरी यूजफुल. जब मैं था स्टूडेंट सो दैट टाइम इट वाज नॉट अवेलेबल. तो नाउअडेज यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, पूरा नहीं समझ सकते हो एटलीस्ट, बट यू विल अंडरस्टैंड लिटिल बिट आफ्टर डूइंग दिस कोर्स आल्सो, एंड यू विल आल्सो लर्न
लाइक अबाउट द लव सॉन्ग को थोड़ा सा भी समझ सकते हो लिटिल बिट, जैसे देस्पासीतो सॉन्ग है ना, वेरी पॉपुलर सॉन्ग हो गया देस्पासीतो। क्या होता है देस्पासीतो? है देस्पासीतो होता है स्लोली, Slowly. है ना। तो बोलता है धीरे धीरे प्यार करो, नहीं है जैसे हिंदी में गाना धीरे धीरे Yes, sir. प्यार को बढ़ाना है, तो वो धीरे 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 प्यार करो वो बोल रहा है बस। वो इसको स्पेनिश में वो म्यूजिक और ये रॉक और वो और वो आ गया ना डैडी यांकी टाना टाना टाना, बस वो फेमस हो गया। तो वो है बायलांदो हो गया, शकीरा है, जेनिफर लोपेस है, सेलेना गोमेज है, सो मेनी स्पेनिश। तो ये है स्पेन का कल्चर इज वेरी ऑल्सो रिच, बहुत ही ज्यादा है। तो देखो ये एक इंटरेक्टिव सेशन है, तो नाउ द फ्लोर इज ऑन यू, सो वन बाय वन यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। सो आई कैन सी सौर्या। सौर्या, you have raised your hand already, I don't know why. Are you there? Okay, maybe other. Okay, Aditya Singh, you can go. Sir, I wanted to ask, as I've already learned Mandarin and Japanese, but they are written very differently. ये तो The इंग्लिश की तरह writing, लिखते हैं। yes, sir, that was my question. ये तो बस इंग्लिश में जैसे ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, सेम वही लिखते हैं, बस एक ही लेटर डिफरेंट है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। और बाकी Okay, सेम, sir. बट वो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। जैसे हम स्पेनिश में ए को Okay. हम आ बोलते हैं, है ना, वो अलग है, बट Yes. वो तुम्हें सीखना नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लो चाइनीज में, Okay. मैंड्रिन में क्या करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे कर देते हैं, उसका मतलब हो Dying. Yes. जाएगा Yes, sir. वो थोड़ा सा वो क्या पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो हर लैंग्वेज अलग है। Okay. जैसे हिंदी इज आल्सो लाइक दैट, एवरी लैंग्वेज इज पिक्टोरियल। इन क्या कि वी नो स्पेनिश, तो इंग्लिश तो हमें इजी हो जाता है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। एनीथिंग एल्स? शर्माओ मत, देखो शर्माना नहीं है, यू आर हेयर टू नो, बिकॉज इफ यू वांट टू लर्न अ लैंग्वेज एटलीस्ट यू शुड नो, ताकि फिर तुम्हें यू कैन एंजॉय, मजा आएगा। ऐसे ही मतलब कि पार्ट टाइम हॉबीज के लिए पढ़ना भी है, फिर भी एटलीस्ट पता तो होना चाहिए भाई, यू शुड लर्न अ लैंग्वेज, है ना। देखो स्पेनिश का ये भी बोला जा रहा है कि 2050 में ये वर्ल्ड की फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगी। अभी इट इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पहले तो चाइनीज मैंड्रिन आ जाता है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, उसके बाद फिर स्पेनिश है, फिर इंग्लिश है, फिर अदर लैंग्वेजेस आता है। फ्रेंच और जर्मन तो बहुत ही 16-17 नंबर पे आता है, तो एक वो भी है। सर हिंदी कितने नंबर पे आता है? या बहुत हिंदी, नंबर पर आता है, बहुत नंबर हाँ पर। हाँ, हिंदी भी आता होगा। और जो हिंदी से स्पेनिश सीखते हैं वो भी बहुत इजी होता है, बहुत इजी है इफ यू नो हिंदी। देखो किसी ने मुझे क्वेश्चन लिखा, सर हाउ टू सेल स्पेनिश ऑनलाइन कोर्स। देखो कोर्स सेल कैसे करोगे, अगर तुम्हें नॉलेज होगा तभी यू कैन सेल योर कोर्स। देखो जिसको पढ़ना होता है स्पेनिश वो आता है। जैसे मैंने गिव मी एन एग्जांपल ऑफ क्या है स्पेन, लाइक कैन यू स्पीक उमराज? हेलो। अच्छा अच्छा, मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा, एक डेस्पासितो को लगाना पड़ेगा साइड में, देन आई कैन रीड योर। मैं मैसेज खोल के देख सकता हूँ। अच्छा, नॉट ऑडिबल सर, सर नॉट, ओके ओके, ये हो गया। उसके बाद आ गया सर इन मैक्सिको विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। इन मैक्सिको देयर इज नो ऑफिशियल लैंग्वेज एट सच, है ना। वहां पे क्या है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है मैक्सिको में। तो स्पेनिश को जो है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज वो मानते हैं, तो मैक्स स्पेनिश इज वेरी ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकते हैं, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं उनके मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में, बट स्पेनिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज वी कैन से देयर। Give some example of the official language. Give some example of Spanish language. Sir, how to say Spanish? Sir, like introduction Spanish language. Okay, तो स्पेनिश लैंग्वेज के साथ और क्या है?
तो ये क्या है, देखो क्या होता है, स्पेनिश लैंग्वेज जैसे कि मैक्सिको का ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, क्यूबा हो गया, चिले हो गया, यूएस में तो सेकंड लैंग्वेज है ही है। तुम देखो, तुम ऐसी लैंग्वेज पढ़ोगे कि यूएस का सेकंड लैंग्वेज, और स्पेन की इतनी पॉपुलेशन है उससे डबल यूएस में बोलते हैं स्पेनिश। So when I was doing master in Spain, most of my friends were Latin American and they are doing the master in Spanish language teaching and they are teaching in US. तो यूएस में बहुत ही ज्यादा जॉब प्रोस्पेक्ट है, और तुम किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हो, इफ यू नो एज फॉरेन लैंग्वेज स्पेशली, तो यू हैव अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, योर सीवी विल बी लाइक प्लस नो 5 पॉइंट मिलेगा ही, तो वो भी एक रीजन है। और फेस्टिवल है, लैंग्वेज है, ऑल दीज थिंग्स। मोर क्वेश्चन, आई वांट यू टू आस्क मोर क्वेश्चन। और तुम लोग दोस्त भी, हाँ हाँ, यस। Yes, yes, sir. Sir, I already learned German, and in German we have levels like A1, A2, B1, B2. So is it same in Spanish also? We have Yes, levels. yes. All the European language has the same level A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो क्या है, देखो जो होम फ्लिक में हम लोग कोर्स करते हैं, जस्ट 20 आवर्स का जो कोर्स है हमारा, उसमें है ना, आई डोंट गो अकॉर्डिंग टू द A1 और B1 टाइप ऑफ लेवल। मैं जो है वो चीजें पढ़ाता हूँ दैट यू कैन यूज, बिकॉज सी इफ देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन वन बैच, उसमें से बहुत सारे जो है दे डोंट वांट टू कंटिन्यू, है ना। तो उसमें क्या होता है कि उनको मैं सिखाता हूँ, और जो इंटरेस्टेड होते हैं आफ्टर डूइंग दिस कोर्स बेसिक स्पेनिश लेवल 1, उसके बाद देयर इज अ स्पेनिश लेवल 2 कोर्स, वो पूरा वो A1 के हिसाब से आई टीच। उसके बाद यू कैन गिव द A1 एग्जाम, डेली A1 एग्जाम, यू कैन डू दैट। और तुम्हें थोड़ा सा बेसिक स्पेनिश आती है तो यू कैन ऑल्सो लर्न स्पेनिश इन स्पेन ऑल्सो। देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स, सो मेनी यूनिवर्सिटीज, सो मेनी सेंटर्स देयर आई कैन गाइड यू, और बहुत ही इकोनॉमिकल है। देखो स्पेन में क्या है, द एक्सपेंसिव सिटीज बार्सिलोना एंड मैड्रिड, सेविया और सान सेबास्टियन। बाकी जो है, इफ यू गो टू ग्रेनाडा वेयर आई स्टडीड, इट्स अ स्टूडेंट सिटी, वहां पे तो हमें ना एक ड्रिंक के साथ हमें एक वो तापास तापास होता है, स्नैक्स, जैसे कि बर्गर हो गया, बर्गर किंग जितना बड़ा बड़ा बर्गर और ये वो सब फ्री में मिलता था। तो आई यूज टू स्पेंड लाइक हाउ मेनी 3 to 3.5 यूरो, और उसमें मेरा जो है मतलब कोका कोला, कॉफी, वट एवर हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो भी पीना पियो, और यू कैन ईट लाइक विथ ईच ड्रिंक यू विल गिव, दे विल गिव यू 1 स्नैक्स ऑल्सो। तो समझो कि 2 के लिए तुम्हें 2 स्नैक्स मिल गया, वो भी हो जाता है। तो जनरली वहां पे वो भी कल्चर है, तो स्पेन में भी पढ़ सकते हो। तो ये है, तो A1, A2, B1, B2 वो उनके लिए होता है जिनको बहुत ही डीपली स्टडी करना होता है, ठीक है। अगर तुम्हारा पर्पस क्या है, एक्चुअली क्या है कि यू हैव टू गो विथ योर पर्पस। अगर इफ यू वांट टू गो इन अ टीचिंग फील्ड, इफ यू वांट टू गो इन अ ट्रांसलेटर, become a translator or interpreter, you must have some kind of level। लेकिन अगर तुम्हें मान लो like a teaching also, but if you want to work in a MNC, if you want to work as a tourist guide in a tourism industry, export and export house, MNCs, so they don't want that kind of level। उसमें क्या A1 कर लो, that is also sufficient। उसमें तुम्हें जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बता दूंगा 20 घंटे में कि ये पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद if you are interested you can learn it from here, you can learn it from other where also, I will guide you where to learn। तो ये है। तो बेसिकली मैं दूसरे टीचर तो दे टीच लाइक दैट, बट मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ। आई टीच अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द स्टूडेंट्स। पता चला क्या है कि A1 लेवल में क्या होता है, A1 लेवल में 4 लेवल होते हैं। A1.1 उसमें क्या है, अल्फाबेट्स, नंबर्स, डेज, मंथ्स में ही वो 35 आवर्स का कोर्स होता है, ठीक है। इफ यू लर्न इन इंस्टीट्यूट सर्वांतेस इन दिल्ली, और दे चार्ज लाइक 15-16,000 रुपीज, ठीक है, 35 आवर्स का। और वो उसमें तुम्हें क्या सिखाएंगे, अल्फाबेट, नंबर्स, डेज, मंथ्स, बेसिक इंट्रोडक्शन, उसी में बस खत्म। आर्टिकल्स, सिंगुलर टू प्लूरल, ये हो गया खत्म। तो आई डोंट टीच दैट वे, है ना। मैं जो पढ़ाता हूँ कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है, सो दैट यू कैन स्पीक स्पेनिश। क्योंकि तुम्हें नॉवल तो लिखनी नहीं है, यू डोंट वांट टू लर्न अ नॉवल आल्सो, ना तो रीड करना है। तो तुम्हारा पर्पस क्या है, लैंग्वेज को एंजॉय करना है। सपोज इफ यू गो टू स्पेन, इफ यू वर्किंग इन अ कंपनी, तो कोई क्लाइंट आ गया, कोई कस्टमर आ गया, तो यू कैन इंटरेक्ट विद देम। हाँ, थोड़ा बहुत स्पेनिश आ गया तो यू कैन नॉट फील दैट वे, उनको भी लगेगा अरे ही और सी नोज। सो वेरी एक्साइटिंग होता है दैट मोमेंट। स्पेन में जाओगे, लैटिन अमेरिका में जाओगे, यूएस में जाओगे, इफ यू नो स्पेनिश, तो वो भी तुम्हारे लिए एक यूजफुल होगा। तो मैं दैट पर्पस आई टीच कि सपोज इफ यू गो टू एनी यूरोपियन कंट्री, एनी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री, यूएस में,
तो तुम्हें जो है एटलीस्ट यू नो स्पेनिश, यू कैन यूज लिटिल बिट, और तुम्हें जितना पढ़ा दूंगा कि एटलीस्ट यू कैन थिंक हाँ ये चीज का मतलब ये है, सो नो वन कैन मेक यू फूल, है ना, ये है। तो वो पर्पस होता है। और if you really want to do A1, so you can do this course, and after that you can enroll for the Spanish level 2, and there I teach Spanish A1। फिर वो प्रॉपर A1 जाता है, फिर A2 जाता है, फिर A3 है, तो वो डिपेंड्स करता है। और ये क्या है कि 1 आवर का क्लास होगा तुम्हारा रोज का, सो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट, एंड यू हैव टू डू लिटिल बिट होमवर्क ऑल्सो, है ना, प्रैक्टिस करना पड़ता है। बेसिकली क्या है, एनीवन कैन यू, एनी टीचर विल टीच यू द ग्रामर, teach you the way, techniques, but usko how to implement, how to use, how to think, that your task। तो I can give you example, जैसे मान लो ओला, ओला क्या होता है, हाय, तुम लोगों ने बहुत सारे स्पेनिश वर्ड सुने होंगे, ओला, आदियोस, केताल, बुएनास नोचेस, आगुआ, कोका कोला, तो स्पेन में सब लोग कोका कोला ही पीते हैं। तो इस तरह का जो वर्ड्स होते हैं, है ना, तो ये सब वर्ड है। जैसे कौन सा वर्ड है फैमिलियर, तुम लोगों ने मूवी देखी होगी टर्मिनेटर, उसमें बोलते नहीं हस्ता ला विस्ता, हस्ता लुएगो, है ना। अमीगो इज वेरी कॉमन इन स्पेन, है ना, बहुत सारी मूवी, इंडियन मूवीज में तुम देखो स्पेनिश यूज करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, पता है तुम्हें कोई रीजन है व्हाई द बॉलीवुड मूवीज दे आर यूजिंग स्पेनिश? Sir, it sounds cool. Spanish is a romantic language, I say, है ना। like English is a funny language, Spanish is a romantic language, very phonetic होता है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में इजी होता है। anyone can learn, anyone can speak, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है प्रोनाउंसिएशन, very easy। जैसे if you allow me, I can show you 2-3 clips, so there you can see no the Bollywood song they are using। तो जिंदगी न मिलेगी दोबारा में तो सबको पता है ना, सेन्योरिटा, quién eres tú, सेन्योरिटा, है ना, quién eres tú, un día echaremos vida sierra no te encanta, ये सर वो गाने का मतलब क्या है? वो तो जब क्लास में आओगे तब ज्यादा डीप में समझोगे ना। वो जो है ना, और वो जो प्लेबैक सिंगर है मारिया दिल मार फर्नांडिस, आई हैव मीट हर, जो प्लेबैक सिंगर, जो पीछे से गाई, डांसर नहीं, शी इज वेरी पॉपुलर फ्लामेंको सिंगर। आई हैव मेट हर इन ग्रानाडा, and because she performed somewhere, so I was there and I came to know that she is the Maria del Fernando। I have a photo also। तो उसने गाया इंडिया में भी आई है, एमआईटी यूनिवर्सिटी में आई है, पता है एमआईटी यूनिवर्सिटी? नहीं, हेलो, वीडियो एडिटिंग अच्छा ठीक है, अब मैं जो है आई एम गोइंग टू शेयर वन स्क्रीन गाइस, सो जस्ट टू शो यू। इज इट ऑडिबल? ऑडिबल है? यस Yes, सर। sir. ओके, ये बताओ कौन सी मूवी है? जब मैं बच्चा था तब ये मूवी देखा था मैंने, वेरी पॉपुलर मूवी। RRR। Chica, chica, chica. देखो, चीका चीका, esta chica गर्ल, तो चीका का मतलब होता है लड़की, गर्ल, चीका इज गर्ल। देखो स्पेनिश उस समय में यूज होता है, चीका। That's my chica girl. Ain't nobody ever going better than my chica girl. Chica, chica, chica. That's my chica girl. Ain't nobody ever going better than my chica girl. Maria, 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 Maria is a very common name in Spain। Señorita Maria. ओके, सेनियोरिटा है ना, तुम सब डीडीएलजे में बोलते हैं शाहरुख खान, सेनियोरिटा सेनियोरिटा, है ना। व्हाट इज सेनियोरिटा मीन? यू नो व्हाट इज सेनियोरिटा मीन? My love.
नहीं माइला तो मी आमोर होता है ना। सेनोरिटा मीन्स सेनोरिटा। सनीता जो है वो यंग लेडी को हम बोलते हैं। जैसे मैं बोलूंगा शकीरा को सेन्योरिटा, मेरे लिए सेन्योरिटा है, तुम्हारे लिए आंटी हो सकती है, बट फॉर मी सेन्योरिटा शकीरा है ना। तो वो यंग लेडी को भी यूज सेन्योरिटा है ना, ये होता है सेन्योरिटा। तो बोलते नहीं स्पेन की मेरी पहली गर्लफ्रेंड स्पेन की थी इसलिए सेन्योरिटा बोलते हैं वो। तो सेन्योरिटा मतलब होता है यंग लेडी को हम सेन्योरिटा बोलते हैं। जैसे सेन्योरिटा आलिया भट्ट, सेन्योरिटा सेलेना है ना। तो वो डिपेंड्स ये Maria, Maria, baila conmigo. What purpose Maria, to Maria, more easily? te quiero, te quiero. te quiero है ना। bailamos ना, एक एनरिके इग्लेसियास का बहुत ही पुराना सॉन्ग है। bailamos te quiero, Maria Maria te quiero। Maria, Maria, धड़का, ये मेरा दिल है, तुझसे तो लगाए, ये मोहब्बत मेरे साथ है। Maria, 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 señorita Maria, 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 baila conmigo, Maria, 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 Maria. Porque lo sé, everybody come on, let's do baila, 3, 2, 1, everybody come on, let's do baila. A mí también siempre quiere verme sola. No ve caer y en su trampa ves. A mí también siempre quiere verme sola. No ve caer y en su trampa ves. है ना, ले लो मजा। तो यू कैन सी है ना, दैट्स वे। सो कैसा लगा? सो देख लो ये स्पेनिश कितना रोमांटिक लग रहा है ना। डू यू थिंक इट इज रोमांटिक और इट इज लाइक अ फनी, और व्हाट डू यू थिंक? सो स्पेनिश इज अ वेरी रोमांटिक लैंग्वेज, आई मस्ट से। सो स्पेनिश का तो एक यूजेस है कि तो इट्स वेरी इजी टू लर्न, आई मस्ट से इट्स वेरी इजी टू लर्न, आई कैन से, because I know French little bit, I know Portuguese also, or when I went to Rome, I realized that I can understand Italian also. So if you know Spanish, you can understand Portuguese 80%. You can not speak, but at least you can understand, or Italian also, because these three languages are very common to each other. बहुत ही सिमिलर है तीनों लैंग्वेजेस, लेकिन और क्या है कि वाइडली स्पोकन है, सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और यू नो यूएस की सेकंड लैंग्वेज है। तो nowadays I work so many places, जैसे मैं कभी-कभी मुझे ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर के लिए दे कॉल मी, तो जो स्पेनिश जो लोग हैं जो यूएस में दे आर डूइंग बिजनेस, दे प्रीफर द पर्सन हु कैन स्पीक स्पेनिश, इंग्लिश, ऑल दिस थिंग्स। तो बाइलिंगुअल है तो कर सकते हो, और कैरियर बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, आई मस्ट से। क्योंकि इफ यू डू एनी नॉर्मल ग्रेजुएशन लाइक कोई हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स और ये सब भी करते हैं, तो यू कैन नॉट गेट अ जॉब। बट इफ यू लर्न अ लैंग्वेज फॉर 2 years, अगर तुमने B1 लेवल कर लिया स्पेनिश में, so you will get a very good job. So many my students, they are working in Amazon, Accenture, so many countries in Bangalore, Delhi also, even in American, क्या बोलते हैं, American Express क्या है कोई का. So there are so many places there you can learn and work also. Tourism में you can go, export import में काम कर सकते हो. You can work as a teacher also, B1 करने के बाद you can teach in a school also, B2 कर लोगे तो I can guide you in that. तो देखो ये सब कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखो क्या है कि इंडिया में बहुत ज्यादा लोग जो फ्रेंच और स्पेनिश जानते हैं, सॉरी फ्रेंच और जर्मन जानते हैं, बट दे डोंट नो स्पेनिश। दे आर सो people are less in this language, क्योंकि क्या है कि हम जब when I was a student, तब से मैं देख रहा हूँ कि सारी भीड़ जो वो फ्रेंच जर्मन में पढ़ रहे थे। I was lucky कि मैंने स्पेनिश चूज किया that time. My friends were saying अरे यार क्यों तुम स्पेनिश पढ़ रहे हो, all these things, but with the help of newspaper, all these things, no, I did some research that time and realized कि नहीं यार स्पेनिश पढ़ते हैं, काफी ज्यादा जॉब प्रोस्पेक्ट होगा आने वाले टाइम में, ऑल्दो अभी नहीं है लेकिन बाद में तो ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी है। तो दैट वे आई वाज लकी एनफ, और
क्योंकि उसमें सारे लोग अभी भी मैं देखता हूँ फ्रेंच के 2-2 बैच चल रहे हैं, 3-3 बैच चल रहे हैं। फ्रेंच में उतना ज्यादा नहीं है जॉब। अगर तुम स्पेनिश में बहुत कम लोग हैं, मतलब इफ यू नो लैंग्वेज स्पेनिश में बहुत जल्दी जॉब मिलता है कंपेयर टू फ्रेंच और जर्मन। मैंड्रिन तो सीखना बहुत ही इम्पॉसिबल है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। यू कैन रियलाइज दोज हु आर लर्निंग मैंड्रिन। तो क्या है, साइड बाय साइड इफ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न स्पेनिश, और देयर आर सो मेनी वेज टू लर्न आल्सो। क्लास के बाद आई कैन टेल यू कि जैसे तुम लोग यू कैन यूज दिस ऐप, यू कैन यूज दैट ऐप, एंड आई कैन टेल यू अबाउट द सम ऑफ द यूट्यूब sites where you can practice your Spanish, or you can make Spanish friend। स्पेनिश लोग बहुत ही ब्यूटीफुल और हैंडसम होते हैं। क्यों पता है? एनी रीजन क्यों इतना ज्यादा खूबसूरत होते हैं स्पेन के लोग? जर्मन के लोग होते हैं लेकिन वो क्या, वो बहुत ज्यादा व्हाइटिश और उनका कलर हेयर का डिफरेंट होता है। स्पेन के लोगों का दे हैव आल्सो अ ब्लैक हेयर, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा हाइट और फिट होते हैं। उसका रीजन क्या है कि स्पेन की जो है वो पॉपुलेशन जो दे आर मिक्स्ड, क्योंकि स्पेन अर्लियर रूल्ड बाय ज्यूइश, लेटर ऑन द इस्लाम, लेटर ऑन क्रिश्चियनिटी, उस तरीके से मिक्स होता चला गया। सो दैट वे। और खाना तो क्या बताएं, सब कल्चर का खाना है। ओहो, मैड्रिड में जाओ तुम खाओगे चॉकलातिस कॉर्न चुरोस, इतना यमी है तो बता नहीं सकता। पाएया तुम लोग खा सकते हो, बहुत ही यमी है। खान मार्केट में एक रेस्टोरेंट खुला था, पता नहीं अभी बंद है या चालू है। If you are from Delhi, you can taste food in Khan Market। और एक सिटी में एक डेस्पेराडो करके बार होता था, there you can eat Mexican food। तो वो है, तो गाइड भी बन सकते हो, सो मेनी अपॉर्चुनिटी है। तो जहाँ पे क्या होता है बेसिकली, क्या इंडिया में प्रॉब्लम है कि जहाँ पे भीड़ जाती है ना, वहीं पे लोग ज्यादा चले जाते हैं। सो यू हैव टू बी डिफरेंट। ठीक है, तुम अगर स्पेनिश, अगर तुम्हारा पर्पस क्या है, दैट इज द मेन थिंग। If you want to make a career, it's very good choice। If you want to learn it for the purpose of traveling, business, CP में वेटेज है, तो that is also good। क्योंकि देखो इंडिया का अगर मान लो इस पे यूएस की इकोनॉमी थोड़ा सा भी हिलती है तो इंडियन इकोनॉमी पूरा हिल जाती है। नॉट इंडियन, ऑल ओवर द वर्ल्ड आई कैन टेल यू। पता है चाइना में दे आर पीपल आर लर्निंग स्पेनिश मोर देन फ्रेंच और जर्मन इन चाइना। आई हैव सीन सो मेनी चाइनीज पीपल इन स्पेन लर्निंग स्पेनिश। स्पेन का तो क्या बताऊं, आई मिस 2 साल हो गया मुझे गए हुए। लास्ट दिसंबर 2019 में था मैं, आई वाज देयर। उसके बाद से एनीवे, तुम लोगों को कभी जिंदगी में मौका मिले तो यू मस्ट विजिट। ठीक है, कोई एनी मोर क्वेश्चंस? पूछो, डरो मत, शर्माओ मत। देखो यही टाइम होता है डाउट क्लियर करने का। फिर तुम एडमिशन ले लोगे तो फिर टाइम भी नहीं मिलेगा सोचने का। तो जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, एनीथिंग यू हैव, यू कैन आस्क मी, डोंट हेजिटेट। You are giving your time to know about the language, everything। Sir, how to sell Spanish? देखो ये सेल उनका तो मुझे पता नहीं है, बट इतना जानता हूँ कि अगर जिसने भी थोड़ा बहुत भी रिसर्च करेंगे which language is important, they can take Spanish। I must sell तो how to sell Spanish तो venta de curso de español। When will the class start from? Dhananjay, when will the class start? Next batch, when are you starting? Dhananjay, conflict. Okay, I don't know. He's here maybe sometime. So they will inform you, but maybe I think it will start in 2-3 days because nowadays I'm also free, so I have asked them to start. So ye bhi hai. They will tell you. Yes, Aditya. Sir, I was just asking that do in Spain the resume formation is different? Because I've tried so many times. Yeah, it is. It is. They have a different format। I will tell you। तो क्या होता है, जैसे तुम्हारा कोई पर्पस है तो आई विल टेल यू। ठीक है, ये है कि आई विल टेल यू कि जैसे रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा क्या होता है कि वो आई गिव एक्स्ट्रा टाइम टू माय स्टूडेंट्स कि ठीक है तुम इतना भी सीख लो एटलीस्ट, है ना, दैट विल हेल्प यू। तो उसके लिए अलग फॉर्मेट है, दैट आई विल टीच यू कैसे होता है। इफ यू वांट टू लर्न, वो है कुछ है। देखो फ्री क्लास क्या होती है, देखो एक तो तुम्हें फ्री में 1500 रुपया कोर्स लेते हैं, क्या है तो फ्री ही समझ लो। मैं जब पढ़ता था तो आई यूज्ड टू पे लॉट ऑफ मनी ऑन द डूइंग अ कोर्स। तो इतना चीप है, ओमफ्लिक ने तो इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया है कि 1500 में यू आर डूइंग अ 20 आवर्स स्पेनिश कोर्स। कहाँ मिलेगा यार, नोवेयर। यू विल गेट अ सर्टिफिकेट आफ्टर अ कोर्स, ठीक है, बट यू मस्ट हैव सम काइंड एटलीस्ट सम पोर्शन ऑफ वर्क यू कैन डू। होता क्या है कि समटाइम्स नो ऑनलाइन क्लासेस है, यू विल गेट सम नेटवर्क प्रॉब्लम, कुछ काम आ गया वहाँ यहाँ पार्टी में चले गए, है ना,
तो क्लासेस नहीं पाते तो यू विल गेट अ रिकॉर्डेड लेक्चर ऑल्सो, तुम्हें एक लिंक मिलेगा, देयर यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर, और उसके बेस पे यू कैन मेक सम असाइनमेंट, थोड़ा सा बहुत होमवर्क करना होता है, लिटिल बिट, जनरली आई डू इन द क्लास ओनली, बट थोड़ा बहुत जैसे होमवर्क करना होता है तो वो सर्टिफिकेट, तो देन यू विल गेट अ सर्टिफिकेट, इट्स नॉट अ बिग इशू, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑल्सो, है ना। तो ये है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी होगा, एंड दैट यू कैन एक्सेस टिल 3 or 6 month, आई थिंक, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, 3 months तो है ही है। तो किसी एनी हाउ फी तो पता है ना यार, ये 1500 या 1600 ऐसे ही कुछ है फॉर द एंटायर 20 hours कोर्स, 1499 1499 है ना, तो वही 15 हो गया ना, 1 रुपए का क्या करना है, वो तो गुल्लक में भी नहीं जाता आजकल। 1499 है क्या, देखो 1499 में मुझे लगता है कि व्हेन आई वाज स्टूडेंट्स इन 2000, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 और 3, तो मुझे कितना हेल्प हुआ होता है, I can understand, because I have struggled a lot to learn a language in India at that time, because at that time we don't have a smartphone, मतलब सबकी बस की बात नहीं थी स्मार्टफोन अफोर्ड कर लेना, in 2002 or 3 I'm talking about, इनकमिंग के चार्ज होते थे उस समय में, तो आई थिंक तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम, तो व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग, तो हम लोग तो आई यूज्ड टू यूज द यूनिवर्सिटी कंप्यूटर फॉर चैटिंग, हम लोग करते थे याहू मैसेंजर में जाके कोई स्पेनिश बंदा बंदी मिल जाए, सो दैट आई कैन इंप्रूव माय स्पेनिश विद देम, तो दैट टाइम इट वाज सो डिफिकल्ट। अब तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तुम्हें ऐसे ही कितने फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स आ गया, कितनी मूवीज है, यू कैन प्रैक्टिस दैट, हमें तो मूवीज भी नहीं मिलती थी, इवन वी हैव टू बोला अगर तुम्हारे पास कोई स्पेनिश मूवी तुमने डाउनलोड की कहीं से, यार प्लीज गिव इट टू अस, फिर हम लोग 5-6 लोग एक कंप्यूटर होता था, देन वी यूज्ड टू वॉच डच मूवी, और हम लोग क्या देखते थे कि यार हाउ दे आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड, नॉट द मूवी में क्या सीन चल रहा है, मतलब हाउ दे आर स्पीकिंग, हाउ दे आर एक्सप्रेसिंग द थिंग्स, तो सो दैट यू कैन स्पीक लाइक अ नेटिव, सो वो सब होता था। बट नाउ इट इज, देखो ये होम फ्लिक वी ग्रो, इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव, यू कैन इमेजिन, मैं तो 1 घंटे का ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मतलब फॉर एनीवन हु वांट्स टू टेक लाइक मतलब डिफरेंट प्लेसेस, तो ऐसे 2-3 हजार रुपये लग जाता है, बट यू आर डूइंग अ कोर्स बिकॉज आई लव टीचिंग, सो दैट वे नो इट्स वेरी इजी, 14999 इज नथिंग फॉर 20 hours, इतना तो एक दिन तुम पार्टी करने जाते होगे तो वो यूं ही निकल जाता है ना, बट नहीं पैंडेमिक में पार्टी नहीं कर पाते हम लोग, क्या करो, ऊपर से ओमिक्रॉन आ गया, पता नहीं कैसे जिंदगी चलेगी। नो लास्ट टाइम आई वाज कोरोना पॉजिटिव ड्यूरिंग डेल्टा वेरिएंट, एंड आई रियलाइज दैट टाइम कि भगवान को मेरी याद आ गई है, नाउ आई विल गो सून, बट एनीहाउ बच गया मैं, बट दैट वे आई एम हियर, थैंक गॉड, जो भी है। तो ये सर्टिफिकेट मिलेगा। एनी मोर क्वेश्चन? नहीं, नथिंग। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, इफ आई आस्क यू समथिंग, किससे मैं पूछूं, इफ आई आस्क हर्ष, आर यू देयर? नहीं है। Yes, sir. अच्छा, so if you want to learn a language, or why are you here? Do you really want to learn a language, or what was your purpose? No, sir. I want to learn a language like different than English. Okay. So I'm here. तो ये ठीक है। देखो मैंने रियलाइज किया है कि मैं अभी भी देखता हूँ पीपल आर लर्निंग फ्रेंच और जर्मन, इतना ज्यादा क्यों सीख रहे हैं, आई डोंट नो एक्चुअली, क्योंकि सर, तुम मैं बता दूं? हाँ बोलो सर एक्चुअली बात ऐसी ना सर कि जर्मन में सर काफी अच्छी हाई यूनिवर्सिटीज है सर, जहाँ पे एजुकेशन लिटरली फ्री है सर। जर्मनी में आपको पता ही होगा सर, आप तो मेरे से ज्यादा यूरोप घूमे हैं सर। और सर फ्रेंच का भी वही सीन है, वहाँ पे भी हायर एजुकेशन कितना फ्री है सर। देखो फ्री जो है वो जर्मनी में है, आई कैन सी, ठीक है, जर्मनी में तो फ्रांस में यूरोप जा रहे हो तो फ्रांस उसके साथ में आता ही है। हाँ वो देखो पर्पस है, लेकिन अगर मान लो तुम्हें फर्दर स्टडी करनी है स्पेन मतलब जर्मनी में जाकर के, ठीक है, और या स्पेन में जाकर रजिस्ट्री करनी है, जैसे मान लो तुम्हें बताओ तो स्पेन में जो यूनिवर्सिटी है दैट इज चीपर देन अदर यूनिवर्सिटीज इन यूरोप, जैसे मान लो सर वो फ्री है, जर्मनी में फ्री है सर, चीपर की बात ही नहीं है, फ्री से वहां पे। नहीं तो पब्लिक यूनिवर्सिटी तो हर जगह फ्री है, स्पेन में भी फ्री है पब्लिक यूनिवर्सिटी। जब तुम कोर्स करने जाओगे तो जो जहां फीस लगता है वहां पे फॉरेनर को उतना ही फीस देना होता है, लिविंग कॉस्ट तो तुमको देना पड़ता है, यू हैव टू पे योर लिविंग कॉस्ट। स्कॉलरशिप मिल गया तो ठीक है,
अगर स्कॉलरशिप नहीं मिला है तो यू हैव टू पे फॉर द लिविंग। जैसे तुम मान लो हॉस्टल्स में रहोगे कि या मान लो इफ यू टेक अपार्टमेंट लोगे तो वो तो यू हैव टू पे। जैसे मैं स्पेन में था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं कहाँ था, आई वाज इन अ अपार्टमेंट। जैसे हम लोग 4 लोग रहते थे एक अपार्टमेंट में, बॉयज गर्ल्स सब मिक्स करके रहते थे, ठीक है। तो आई यूज्ड टू पे लाइक 200 यूरोस, है ना, फॉर द रेंट मंथली। फिर उसके बाद जो है 200-300 यूरो में हमारा 500 यूरो में हमारा काम चल रहा था पूरा महीने भर मस्त एकदम। तो देखो वो डिपेंड्स करता है। हाँ मान लो स्कॉलरशिप तो तुम्हें स्पेन में भी बहुत, मतलब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में चले जाओ, यूएस में चले जाओ, अगर तुम्हें स्पेनिश आती है तो यूएस में तुम्हें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो पर्पस भी होना चाहिए। हाँ अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जर्मनी में जाकर के पढ़ना है, बीटेक करना है या जर्मनी में जाके मास्टर्स करना है, ठीक है, तब तो ठीक है, क्योंकि जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम इज डिफरेंट, है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब टेक्नोलॉजी में ज्यादा ही मतलब इट्स वेरी फेमस, आई मस्ट से। अब पता तुम्हें ये BMW मर्सिडीज कहाँ की कंपनी है? जर्मनी है ना, जर्मनी है ना, पता। लेकिन पता ये बनता कहाँ है? ये सारा स्पेन में मैन्युफैक्चर होता है। स्पेन का जो है नंबर 1 ऑटो पार्ट्स में है, एक्सपोर्टर में। स्पेन जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा, ऑल्दो स्पेन का एक ही ब्रांड होता था कार का, वो सीएट होता था, जिसको बाद में फोक्सवैगन ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन जो बार्सिलोना के साइड में एक प्लेस है, वहां पे सारा मैन्युफैक्चर होता है। फिर वहां से वो जर्मनी और फ्रांस जाता है मोस्ट ऑफ देम, जिसे जो मैन्युफैक्चर होता है वहां पे। लेकिन क्या है कि जर्मन का इकोनॉमी अलग है, वो भी डिपेंड करता है ना। स्पेन क्या है, टूरिज्म पे है। स्पेन के लोग ना खाते पीते हैं। स्पेन में तुम जाओगे ना तो लोगों को देखोगे हंसते गाते नाचते पार्टी करते। जर्मन में तुम जाओगे, जर्मनी में तो देखोगे कि पीपुल नो, वो काम पे भी जा रहा है तो खाते हुए नाचते, मतलब कुछ खाते जा रही है, खा लिया काम में, दे आर वेरी सिंसियर इन दैट वे। तो वो भी एक पर्पस है। लेकिन अगर तुम्हें जॉब प्रोस्पेक्ट से देखना है तो अभी के टाइम में जितने लोग स्पेनिश जानते हैं वो कम है अभी भी, लेसर देन फ्रेंच और जर्मन। क्योंकि इस देखो क्या होता है कि बचपन से ही स्कूल में क्या था, पहले व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट सब स्कूल में क्या होता था, 2 लैंग्वेजेस होती थी, फ्रेंच और जर्मन, फ्रेंच और जर्मन। रशियन होती थी बहुत पहले, लेकिन नाउ यू कैन सी सब स्कूल में फ्रेंच जर्मन स्पेनिश, फ्रेंच जर्मन स्पेनिश है सब स्कूल में मोस्टली। और तुम रियलाइज करोगे कि आज के टाइम में मोस्टली जो बड़े बड़े स्कूल हैं उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्पेनिश। उसका रीजन ये है कि बिकॉज दे वांट टू फर्दर स्टडी इन यूएस में जाकर के वो पढ़ेंगे। तो यूएस में अगर तुम्हें स्पेनिश आती है तो दैट विल गिव एन एडेड एडवांटेज। वो है। बाकी मुझे तो कल्चर के ऊपर से मतलब बहुत ही बढ़िया है जर्मनी का, ठीक है। पर्पस क्या, व्हाट इज योर पर्पस? अब जैसे मान लो कि सारे लोग पढ़ रहे हैं, हम भी वही पढ़ रहे हैं, नहीं, व्हाट इज योर पर्पस? यू वांट टू डू, तुम्हें वो देखना है कि जिसमें कम लोग हो, कम भीड़ हो, वो करना है, या जिसमें ज्यादा भीड़ ऑलरेडी है उसमें वो कोर्स करना है ना। जैसे मान लो कि एमबीए है, बहुत सारे लोग एमबीए करते हैं, तो जैसे मार्केटिंग में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें जैसे एनालिटिक्स आ गया, बिजनेस एनालिटिक्स, मास्टर्स बिजनेस, है ना, एनालिटिक्स। तो वो जो लोग करते हैं डिफिकल्ट है, बट जो करते हैं उनको रिवार्डिंग होता है। तो ये एनीथिंग एल्स गाइज? तो ये आई मस्ट से कि होमफ्लिक इज गिविंग गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न अ लैंग्वेज। तुम एक काम ये भी कर सकते हो, जैसे मान लो ये 20 आवर्स में कोर्स करके देन यू लर्न अदर लैंग्वेज ऑल्सो, फ्रेंच कर लो, फिर जर्मन भी कर लो, थोड़ा थोड़ा सब सीख लो, एटलीस्ट यू कैन डू दैट। देन यू विल रियलाइज कि कौन सा बेटर लगा, कौन सा इजी है। अब जैसे मान लो कि तुम स्पेन में जाते हो या किसी भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जाते हो, तो तुम्हारा ज्यादा अप्रोच वहां से है ना। कि अब जैसे मान लो कि तुम जर्मनी कहाँ बोली जाती है, जर्मन लैंग्वेज? जर्मन इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। फ्रेंच तो फिर भी है, बट जर्मन इज नॉट अ यूएनओ लैंग्वेज, है ना, वो भी है। जर्मन कहाँ बोली जाती है? स्विट्जरलैंड में बोलते हैं, दे स्पीक जर्मन, है ना। लेकिन स्विट्जरलैंड में कौन जाते हैं? हमारे जैसे लोग तो जाते नहीं है ना। अंबानी ये सब जगह लोग जाते हैं, और जिनके पास तो जर्मन पर कम है कंट्रीज। स्पेन का तुम देखो तो स्पेनिश का तो बहुत ही ज्यादा लोग बोलते हैं। एक तो 21 कंट्रीज हो गया, उसके अलावा यूएस की लैंग्वेज है, तो यू कैन इमेजिन। और 2050 में जो है वो सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज हो जाएगी। सो दैट इज द थिंग। तो मेरा जो लेक्चर होता है वो स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी सब में मिक्स करके आई टीच, क्योंकि आई नो सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट नो इंग्लिश वेल, सो दे डोंट वांट टू
सफर की नहीं समझ, तो आई मिक्स ऑल द थिंग्स टुगेदर एंड देन आई टीच। और जो स्पेनिश लेवल 2 करते हैं, दैट इज ओनली इन स्पेनिश टू स्पेनिश, और you will learn about the culture, food, everything apart from the basic Spanish also. ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें लैंग्वेज बताऊंगा, तुम्हें वो भी बताऊंगा कि स्पेन में नाइट लाइफ कैसे करते हैं। If you are in a bar, disc, how will you approach to other person to dance or talk? How will you talk? How will you eat? है ना, वो कैसे खाते हैं ना, कैसे ड्रेस अप करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के साथ you should also know these things well. और मैं तो वहां पे रहा हूँ, तो I know them very well. Or I really missed. I don't know when the Omicron will finish. Okay, any question? Don't hesitate, guys. Ask. Gia, you tell me. Will you learn Spanish now? Maybe. Maybe. Why maybe? Any doubt? Because, no, it's because I'm trying to learn Korean for now. Okay, Korean. Yeah, but Korean, you have to learn. Korean is it's like a Mandarin. वो पूरा pictorial है. No, Korean में क्या? it's kind of easy by learning Mandarin. So Korean is easiest language, and then Japanese. But then Japanese has 5,000 characters, and then हाँ, तो भैया, Mandarin is different. वो तो मैं समझ गया, लेकिन है तो करेक्टर ही, वो भी उसको ही सीखने में ज्यादा टाइम लग जाता है। नहीं, ये- सिर्फ 24 कैरेक्टर्स ही तो है, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस Okay. उसका ग्रामर प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है थोड़ा। Yeah, Korean is, or Japanese is also, but वही है कि very difficult होता है, because if you are doing a course, like suppose क्या होता है कि suppose you are doing a course, you are doing a MBA, you are doing a BBA or any other undergraduate or postgraduate course, or side by side if you want to learn a language, तो मेरे according to me, जैसे कोई भी, जैसे कि ईस्ट एशियन लैंग्वेजेस में बोलते हैं इसको, कोरियन, जापानीज, मैंडरिन, सो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यू कैन नॉट डेडिकेट मोर टाइम। इसके लिए फुल डेडिकेशन चाहिए, बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, देन यू कैन ओनली कैच अप। और उसके लिए तुम्हें जो है 20 आवर्स में तो यू कैन लर्न ओनली कैरेक्टर, और आई डोंट नो कितना क्या, आई डोंट नो मच, सो आई डोंट वांट टू से, बट ये ठीक है। तो योर पर्पस शुड बी क्लियर। आई डोंट वांट टू टेल यू कि नहीं स्पेनिश ही सीखो, आई वांट यू टू लर्न अ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू योर पर्पस, दैट विल सर्व यू। ठीक है, जैसे मान लो इफ यू आर फ्री, तो कौन सा लैंग्वेज है, तो स्पेनिश सीख लो, दैट इज ओके। बट फॉर द आई थिंक नहीं यार, आई कैन मेक कैरियर इन दिस फील्ड, और मेरे पास ये टाइम है, आई कैन गिव दिस मच ऑफ टाइम, सो विच लैंग्वेज आई सूट देम अकॉर्डिंग टू योर टाइम, वर्क, नो, देन यू विल डिसाइड। ये okay guys, so if you don't have any question, then yes please go ahead. Priyanka, do you have any question? Any problem, any doubt? Nothing? कुछ नहीं है? अरे कुछ तो पूछो। आई एम फीलिंग वेरी सैड, तुम लोग बोलते नहीं हो, बताओ कुछ तो। इस कल्चर के बारे में पूछ लो, स्पेन के बारे में कुछ पूछ लो एटलीस्ट। Sir, Yes, one at a time. Yes, Himanshu, you go ahead and then sir, आप स्पेनिश के बारे में एनी टॉपिक को बोल के बताइए ना आप एक बार। hola, ¿qué tal? है ना, hola means hi, ¿qué tal is how are you? है ना, के ताल जैसे ना हिंदी की तरफ बहुत फेवरेट है, तालों में ताल, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, सो के ताल, हाउ आर यू, है ना, कितना इजी लग रहा है, के ताल। ते quiero मतलब आई लव यू, and then you can say chico, chica, adios, hasta luego, hasta mañana, है ना, novio, novia, there's so many words। बोला के ताल, me llamo, जैसे नाम बोलना होगा तुम बोलोगे me llamo, जैसे मैं बोलूंगा me llamo Pablo Escobar, है ना, me llamo Gilani, me llamo Pablo Escobar, me llamo Abiram, me llamo this or that। Belinda, who is Belinda? I think she was my student Belinda. Belinda, are you there? Yes, Belinda. Belinda, are you there? Hello, 1, 2, 3. Yes, sir. Hello, good Can evening. you turn on your camera? Because your name is very similar to Spain.
Linda is like do you know what is Linda? Linda is cool, cute, है ना? जो बंदा बहुत सारा cute सा होता है उसको हम बोलते हैं Linda. Is very cute, तो बोलते हैं Linda. So is your name is Belinda? Yes, sir. So you are be cute. That's great. Yes. So ये हो गया. Amigo is very common. Friend बोलते हैं ना amigo. Hola, adios. बहुत ही कॉमन टू इंग्लिश है. होटल, बहुत सारा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, होला, के tal, bien, muy bien. नार्कोस में बोलते हैं नहीं प्लाटा, है ना? प्लाटा प्लाटा. नार्कोस देखी तुम लोगों ने? Have you seen the Narcos on Netflix? It's based on the Pablo Escobar, one of the biggest narco trafficker in the world. So उसकी लाइफ पे बेस्ड है. You watch Narcos, you watch Money Heist. देखा तुमने? La Casa de Papel. अरे देखो Netflix पे. Then you will see the language. La Casa de Money Heist available on Netflix का सारा सीजन है. Wow, such a beautiful. मतलब अब तक का सबसे देखा हुआ वो है. So Money Heist देखो, Elite देखो, Suit देखो. So many. I can tell you later on also, but you can watch so many, and then you will realize कि oh my God, Spanish movie इतनी बढ़िया होती है. I don't. Oh yeah. No question? Yes, Mugdha, do you have any question? Yes, sir. How much grammar part is there in the language? ग्रामर पार्ट तो है, लेकिन मतलब कि स्पेनिश में उतना ग्रामर नहीं जितना इंग्लिश में. Okay. Because I have learned German, तो जर्मन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है. जर्मन में तो सिंगुलर टू प्लूरल बनाने में ही दिमाग खराब हो जाता है. I tell you how to make singular to plural और आर्टिकल्स. स्पेनिश में ऐसा नहीं है. वेरी इजी है. इंग्लिश में से भी कम ही रूल है इसमें. सो वेरी इजी. जैसे कि मान लो सिंगुलर टू प्लूरल बनाना है तो अमीगो है तो अमीगोस कर देते हैं. सो दो रूल है ना? ज्यादा रूल नहीं है स्पेनिश में. मैंने देखा है इन पोर्चुगीज आल्सो वेरी रूल यार. सिंगुलर टू प्लूरल बनाने में भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है. तुम बताओ, सोचो. फिर उसके बाद पोजेसिव्स है, फिर आर्टिकल्स में बहुत सारे रूल्स हैं. स्पेनिश में उतना ज्यादा रूल नहीं है. जैसे मान लो कि मैंने देखा है तभी लोग, मैं सोचता था कि सिर्फ ये जो है इनका 20 आवर्स जो है ये सिंगुलर टू प्लूरल दिस और दैट बनाने में क्यों चला जा रहा है. बिकॉज ऑफ दिस इज वेरी डिफिकल्ट. उतना ग्रामर नहीं है. वेरी ज्यादा ग्रामर नहीं है. इंग्लिश से भी कम है. और इसमें क्या है, कोई भी यूरोपियन लैंग्वेज उसमें वर्ब्स होती है, उसकी कंजुगेशंस होती है. दैट यू हैव टू डू. वो लर्न करना पड़ेगा फ्रैंकली. जैसे संस्कृत पढ़ा होगा तो उसमें बोलते नहीं अहम अवाम बेम करके कंजुगेशन होती है, वर्ब की कंजुगेशन होती है. इस तरह से स्पेनिश में, जर्मन में, पोर्चुगीज में, फ्रेंच में, सब में होती है एक्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के. उर्दू को सब लैंग्वेजेस में देयर इज अ वर्ब कंजुगेशन. सारी लैंग्वेजेस में. पर्शियन में ये सिर्फ आई हैवंट सीन इन इंग्लिश. हिंदी उर्दू में नहीं है, संस्कृत में. Okay, guys. Any more question? No more question. So those who are interested. Okay, so this time, okay, it's a time to say goodbye. And if you are interested, do enroll for this course. And what else? Maybe you will learn more. It's a 20 hours class. कोई ज़्यादा expensive भी नहीं है in that way. क्योंकि इतना तो ये if you maintaining the internet, all these things उतना भी चला जाता है. So it's not that expensive. I must say, when I was a student, I didn't have this kind of opportunity. मैं तो बहुत जल्दी सीखता language. So now you have opportunity. तुम्हारे पास क्या है कि 20 hours पढ़ने के बाद भी you can realize कि क्या होता है. बहुत सारे there are so many people they cannot learn the language. So after doing this, को they realize कि मेरे बस की बात है कि नहीं है. Then you can. तो क्या होता है कि they take admission in a big institute. फिर वो 20-25% पैसा दे देते हैं. फिर लगता है नहीं हो पा रहा, फिर पैसा देके वो भी है. इसमें क्या है, you can also take at a hobby also. ठीक है, सीख लेते हैं at least, but yeah, at least you will learn now. Yeah, Maki, it's up to you. You are most welcome. And hope for the best. The pandemic will end soon and we will live our normal life in future. All the best, guys. Thank you very much. And it's time to say you adios. Adios.